Yesterday we have done till question number 5th. Now we will do question number 6th onwards. First of all, we will show that this is a homogeneous differential equation. So for that, what we will do, x into dy is equal to, take this value that side, under root x square plus y square into dx plus y into dx. Take dx common, it will be under root x square plus y square plus y. Here it will be x into dy. Now take this dx this side, dy over dx is equal to under root x square plus y square plus y upon x. Now take it as a function of x and y. Take it as a function of x and y. After that, what you will do to show it as a homogeneous differential equation, replace the x by the lambda x and y by the lambda y. Here also this is lambda x, lambda square y square plus lambda y upon lambda x. This lambda square will be common and out of the root it will be lambda under root x square plus y square plus lambda into y upon lambda x. Take lambda common and cancel it up. What you will get, under root x square plus y square plus y upon x. So this is lambda to the power 0 and function of xy, because you are not having any lambda now. So function of x lambda and here it is y lambda. So this is the homogeneous differential equation. This is the homogeneous differential equation of order 0. Now what we have to do after this, we have to solve this differential equation. So how to solve the differential equation? Homogeneous, put y is equal to vx, always y is equal to vx, then dy over dx is equal to v plus x into dv over dx. ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स. जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ वहाँ vx पुट करना है. सो इट विल बी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस vx अपॉन x. So I will take x square common, x will come out, it will be x under root 1 plus v square plus vx upon x. This x and x will be cancelled, so we are left with the value, क्या रह गया यहाँ से, v plus x into dv over dx and here it will be under root 1 plus v square plus v. Cancel this plus v and minus v. This will be dv x into dv over dx is equal to under root 1 plus v square. इसको इसके नीचे लेके आओ, dv upon under root 1 plus v square is equal to dx over x. Now put the integral sign both the sides. Put the integral sign both the sides. You know that the integration of dx over x is equal to log x, and wherever we are having it, this LHS we are having dv over under root 1 plus v square. तो यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है log of, so put the value over here, log of x, instead of x we are having v plus under root 1 plus v square. Here it will be equal to log x. अब यहाँ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को log c ले लो क्योंकि सारा log में ही दिख रहा है. यहाँ log a प्लस log b को log a b कर दो. इसको लिखो log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर. अब log हटाने के लिए e कर दो तो जहाँ v है ये अकेला v बच जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी. तो इंस्टेड ऑफ v व्हाट यू डू, यू पुट y बाय x. यहाँ भी पुट कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी. अब आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दीज स्टेप्स, ये स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स सिर्फ ये शो करने के लिए है कि दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, y इज इक्वल टू वी एक्स. जस्ट कॉपी इट डाउन. Copy down, then we will do the next question.
Now after this question we will not show that it is a homogeneous differential equation, only we will solve the homogeneous differential equation. Okay, अब शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे. और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि शो इट, देन ओनली यू विल शो. ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 आई एम राइटिंग. जिसने 6 नहीं लिखा है लिख लो. दिस विल बी dy ओवर dx. मैं पहले ही अरेंज करके लिख रही हूँ इसके नीचे, तो ये यहाँ चला जाएगा. हेयर इट विल बी y x cos y by x प्लस y sin y by x, close bracket. Here it will be x bracket y sin y by x. This is minus x cos y by x. First you check whether we have written the question correctly or not. Y x cos y by x plus y sin y by x upon x y sin y by x minus x cos y by x. Now I am not showing it that it is a homogeneous differential equation. Same way we have to show it. Okay, we will start solving this question. बट एग्ज़ाम में यू हैव टू शो इट. अगर लिखा है तो आपको शो करना ही पड़ेगा. तो कैसे? सोल्यूशन इज सेम. पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स. पुट करो यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स, एक्स एज सच. Instead of y by x, see y by x is equal to v, so this will be cos v plus vx, this will be sin v, bracket close, this is x bracket vx sin v minus x cos v. सबसे पहले तो ये वाला x कट कर दो, फिर x कॉमन लेके ये भी कट कर दो. अभी लिखना नहीं, I will give you the sufficient time. First you understand the question. Plus v take that side. It will be x into dv over dx. ये बना v cos v plus v sin v, okay, upon v sin v. Here it will be v sin v ना, और minus cos v. Plus v will go this side, it will become minus v. Now take LCM and simplify it. So when I will take LCM, I will get v sin v minus cos v. Here it will be v cos v minus plus v sin v minus v square sin v and plus v cos v. एक बार चेक करना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. Yes, see this v we have not multiplied, it should be v square. Okay, this and this will be cancelled. X into dv over dx, so we will get x into dv over dx is equal to 2v cos v upon v sin v minus cos v. Now after this what we will do, we will separate the variable separable. We will do means we will separate the variable. With dv we will have v, with dx we will have x. अब वेरिएबल सेपरेट कर दो जो आपने पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था. दिस विल बी v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय v cos v इंटू dv इज इक्वल टू 2 dx ओवर x. इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा दो. ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी ले जाओ, v से v कट गया, ये बन गया साइन अपॉन कॉस टेन v. इसको इसके नीचे भी ले जाओ तो ये बन गया हमारा इंटू डी वी लिख देते हैं. माइनस कॉस से कॉस कट गया 1 अपॉन वी इंटू डी वी और इज इक्वल टू 2 डी एक्स ओवर एक्स. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट इट. इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट वी, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ v, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 log ऑफ x. और मैं सारा लॉग में आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी इसी में ले लेती हूँ. log a माइनस log b दैट विल बी इक्वल टू log a
अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, पहले इसकी पावर यहाँ ले जाऊँ, log x स्क्वायर इंटू सी, मैं log हटा देती हूँ और v की जगह y बाई एक्स लिख देती हूँ, तो सीकेंट y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू सी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हेयर, सीकेंट y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक x से x कैंसिल कर दो, this will be yxc, that is secant y by x. This is the general solution of the differential equation, homogeneous differential equation. Just write down the question number 7. See, now question number 8, question number 9 is just similar as question number 7, means first to 7th whatever we have solved. After writing this question, we will do question number 10 and then I will tell you the particular solution of the differential equation. Just copy it down. Last is visible to you. See. Now I am writing question number 10th. 8th and 9th is just similar as till question number 7. There is slight variation in the question number 10. थोड़ा सा अंतर है. 1 plus e x upon y into dx plus e x by y 1 minus x upon y is equal to into dy is equal to 0. Now पहले इसको रब कर देती हूँ, then we will start solving the question. Now till question number 9th we are finding dy over dx. Now from this question, see in this question we are having the value of or power of the e is x upon y, so it's not necessary that always you have to take the differential equation in the form of dy over dx. You can take in the form of dx over dy also. In this question we will take it because here we are having x upon y. 1 plus e to the power x upon y into dx is equal to minus e to the power x upon y into 1 minus x by y into dy. Now take this dy this side, dx upon dy is equal to, now I am multiplying this e to the power x upon y, this is x by y minus 1 upon 1 plus e to the power x upon y. अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए dx over dy तो आप क्या करोगे, वहाँ लिखते थे put y is equal to vx, put y is equal to vx, here you will write put x is equal to vy, वहाँ आप लिखते थे dy over dx, यहाँ लिखो dx over dy is equal to v plus y into dv over dy, वहाँ लिखते थे v plus x into dv over dx. Now put the value over here, v plus y into dv over dy e to the power, see x upon y is v, this is v minus 1 upon 1 plus e to the power v. Okay, now take this v that side minus v, take LCM, here also you multiply v e to the power v minus e to the power v minus v into e to the power v upon 1 plus e to the power v. जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, e टू द पावर v प्लस 1 अपॉन v, सॉरी अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v. हेयर वी आर हैविंग y इंटू dv ओवर dy. नाउ अगेन यू सेपरेट द वेरिएबल, फिर से आप वेरिएबल सेपरेट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सेपरेट करने के लिए 1 plus e to the power v divided by e to the power v plus 1 into dv is equal to minus dx over x. Now take the integration sign both the sides. इसको आप substitution से solve कर सकते हो. dt e to the power v का डेरिवेटिव e to the power v का 1 और फिर होल आ गया dv. ये देखो dt over t, this will be log t, I am writing directly e to the power v plus v is equal to minus log x, फिर यहीं मैं लिख रही हूँ log c, फिर मैंने इसको लिख दिया log of e to the power v plus v, यहाँ से लिखा log c by x
ई की दोनों में पावर ले लिया, ई की पावर को अब यहाँ से देखो v की जगह एक्स अपॉन वाई लिख दो, एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, c अपॉन एक्स। अब इसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो डू इट, otherwise this will be the general solution of the differential equation, homogeneous differential equation. Just copy it down, then I will tell you the particular solution of the differential equation. After writing the question, just to check the question whether you have written the question correctly or not. Now question number 11th onwards we have to find out the particular solution. Now we will start solving it. Particular solution, as you have done it in the previous exercise also, we have to find out the general solution. मतलब यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था वहाँ तक के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, that is same only. Now here it will be x plus y into dy is equal to minus of x minus y into dx. मैं dx को इसके नीचे लेकर के आ रही हूँ, यहाँ से आ गया मेरा माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. अब मैंने किया पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स. यहाँ पुट कर देती हूँ वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स. ये हो गया माइनस एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स. ठीक है, x कॉमन लेके कट कर देते हैं, ये बनेगा v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन. एक्स मैंने कॉमन लेके कट कर दिया बेटे. ठीक है, अब अगले स्टेप में ये प्लस v को उस साइड लेके जाओ, ले लो एलसीएम, तो ये आएगा v प्लस वन. दिस विल बी v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी. ये और ये मैंने ख़त्म कर दिया. यहाँ x इंटू डी वी ओवर डी एक्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया. दिस विल बी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेपरेट द वेरिएबल. वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स ओवर एक्स. When we have separated the variables, what we have to do after this, we have to integrate the differential equation. Now we will integrate this function. इसको इंटीग्रेट करेंगे हम. कैसे इंटीग्रेट करें, एक काम करते हैं, वन के नीचे भी डिनोमिनेटर ले जाते हैं और v के नीचे भी. अब मैंने इसको अलग कर दिया, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी. यहाँ पर लिखा प्लस v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी. ये तो बहुत अच्छा है, सीधे ही पता चल रहा है माइनस ऑफ लॉग एक्स है. यहाँ लॉग सी लिख लो. ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है, वन अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसको अगर सब्सटीट्यूशन से t ले लेते हैं, देखो वन प्लस वी स्क्वायर को ले लिया t, तो डी टी हो गया मेरा ये ज़ीरो, ये टू वी इंटू डी वी. तो टू वी तो है नहीं, वन बाई टू आ जाएगा. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा हाफ डी टी ओवर टी, दैट इज़ इक्वल टू लॉग टी. डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लॉग ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स. इस पावर को इसके ऊपर ले जाओ, यहाँ देखो v लिखना चाहिए था, मैंने x लिखा, v लिखो इसको. अब log a प्लस log b मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log v इंटू वन प्लस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू log ऑफ सी एक्स. अब log हटाने के लिए e की पावर कर दो, इसको लिखो v और यहाँ लिख दो पावर वन बाई टू, मतलब अंडर रूट होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स. अब बेटे क्वेश्चन तो हमारा v में है नहीं, क्वेश्चन तो y बाई एक्स में है. मैंने ये रखा y बाई एक्स, v की जगह यहाँ लिख दिया वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर c बाई एक्स. अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया एक तरीके से. नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x. ये हो गया वन अपॉन वन, दिस इज़ वन बाई वन, ये हो गया रूट टू. तो मेरी c की वैल्यू आ गई रूट टू. जो भी आ गई है c की वैल्यू वो मैं इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देती हूँ. y बाई एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू सी.
√2/c। देखो ठीक है ना, 1/1 दिस इज 1, 1 + 1/2/1², दिस इज ऑल्सो 1, तो ये √2 हो गया, ये तो 1 ही है। अब इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज अनदर थिंग, बट जितना सिंप्लीफाई हो सके कर देना। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स whenever we are finding out the particular solution of the differential equation, in that case what we have to do, हमें जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ता है, बट लास्ट में सिर्फ हमें x और y की वैल्यू पुट करके हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जिसके बाद हमारा वहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाता है। c की वैल्यू वापस जनरल इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन। Copy it down. One more question I will explain you. मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया बेटे, देखो मतलब मैं उस साइड dx वाले dy वाली टर्म को ले गई होंगी तो -x हो गया, फिर वो उसके नीचे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला स्टेप तो आपको पता है कॉमन है, तो अब आप पुट करना शुरू करो इसमें। देन पुट y = vx, तो v + x × dv/dx। यहाँ भी पुट कर लेते हैं, x की जगह x लिख देते हैं, sin² v - vx अपॉन -x। मैं x कॉमन लेके कट कर सकती हूँ, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, v - sin² v, दिस विल बी v + x × dv/dx। v से v मैंने कट कर दिया, अब यहाँ पर आ गया, मैं इसको इसके नीचे ले आती हूँ, dv/- sin² v = dx/x। अब इंटीग्रेट किया तो दिस इज -cosecant² v × dv = log x। ठीक है, अब प्लस c। बेटे देखो कॉट का डेरिवेटिव होता है -cosecant² x, तो -cosecant² x का इंटीग्रेशन होगा कॉट, तो दिस विल बी cot v = log x प्लस c। आप v की जगह वैल्यू पुट कर दो, cot y/x = log x प्लस c। देखो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, but it is the question of the particular solution, so we have to see that whatever the value of x and y they have given to us। यहाँ तक तो हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इन्होंने हमें y की वैल्यू दे दी π/4 और x की वैल्यू दे दी इन्होंने मुझे 1। अब मैं यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करती हूँ। देखो cot π/4 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज cot π/4 = log 1 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ख़त्म करो बेटे, cot π/4 1 होता है, तो ये मेरी c की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं यहाँ पुट कर दूँगी cot y/x प्लस = log x प्लस 1। अब क्या पीछे आपको x ही दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत आओ, उन्होंने क्या किया हुआ है, log 1 को मतलब 1 को उन्होंने log e लिख दिया। आपको पता है ना log e की वैल्यू log a प्लस log b, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया उसको। तो आप अगर ऐसे भी करना चाहते हो तो दिस इज़ द वे आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सी नाउ 12th, 14th and 15th are left. This is just similar as question number 11th and 13th। आपको ऐसे ही करना है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, dx/dy दिया है, तो मैंने क्या बताया था, dy/dx के लिए पुट y = vx, और अगर मुझे dx/dy दे दिया तो मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x = vy। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
आपको मैंने यही बताया कि x को आपने लैम्डा x से रिप्लेस करना है, y को आपने लैम्डा y से रिप्लेस करना है। अगर वो फंक्शन बन जाता है तो फिर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। एक शॉर्टकट और है पहचानने के लिए, आप जितने भी वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं सबकी पावर को काउंट करो। अगर सबकी पावर सेम आ जाती है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाकी नहीं है। जैसे पहले वाले पार्ट में x की पावर 1 y की 1 5 पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बी वाले में देखो x की 1 y की 1 मिला के हो गई 2, बट x क्यूब है और y क्यूब है, सेम नहीं आ रही। पूरी इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स की पावर सेम आनी चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सी वाले पार्ट में x की पावर 3 y की पावर 2 ये भी बराबर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ ये एक शॉर्टकट है चेक करने के लिए, बाकी अगर आपको प्रॉपर करना है तो तरीका वही है कि रिप्लेस x बाय द लैम्डा x एंड y बाय द लैम्डा y। अब फोर्थ वाला देखो, y की पावर 2 x की पावर 2, x और y दो वेरिएबल दिए, x की पावर भी 1 y की पावर भी 1, ऐड होके हो जाएगी 2, और लास्ट वाला y की पावर भी 2। मतलब जितने टर्म्स दिए थे सबकी पावर 2 2 2 2 2 है, सेम है, तो इसका मतलब दिस कैन बी द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 17th का आंसर आपका डी हो गया। फिर मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द शॉर्टकट। आपको पूरा प्रॉपर करना है तो रिप्लेस द x बाय द लैम्डा x एंड y बाय द लैम्डा y, एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा टू द पावर n और f ऑफ x y। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें भी जो आपकी 9.3 और 9.6 के बेस वाली है वो हम कट कर देंगे और बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ओके।